Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss the development of the heart. These are the objectives regarding the development of heart. So first of all, you can see this is the adult heart, which consists of right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. This is the pulmonary trunk, which receives the blood from the right ventricle, and this is the aorta, which receives the blood from the left ventricle. This is the area showing the opening between the right atrium and the right ventricle. This opening is known as the right atrioventricular opening, which is guarded by the tricuspid valve. And here should be the left atrioventricular opening, which is guarded by the bicuspid valve. These are the bicuspid valves, which are attached by the papillary muscle by these chordae tendineae. This portion indicates the outflow part of the right ventricle, and this portion shows the outflow part of the left ventricle. Because the development of these two outflow has differently origin from the different part of the heart tube. So after discussing these adult parts, now we are going to discuss the development of the heart. This is ectoderm and this is notochord. This is the intraembryonic mesoderm, and this yellow color is the endoderm. The intraembryonic mesoderm, which consists of the paraxial mesoderm, intermediate mesoderm and lateral plate mesoderm. The lateral plate mesoderm divides into two parts by appearing of this cavity, which is known as the intraembryonic cavity, into somatopleuric, which continues with the ectoderm, and this is the endoderm. And this endoderm, with this mesoderm, which continues with the endoderm, is known as the splanchnopleuric mesoderm. As you know, the splanchnopleuric mesoderm consists of mesodermal cells. These mesodermal cells collect and form the blood islands for formation of the heart tube. So यहाँ पे अगर देखें तो ये भी आइलैंड बन रहा है, ब्लड आइलैंड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. ठीक है. अब इधर क्या लिखा है? दी हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन बिकॉज इट अपीयर्स इन द स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म. इट इज फॉर्म बाय द cardiogenic cells of the angioblastic cells of the mesoderm, which is known as the splanchnopleuric mesoderm. In front of the procardial plate, in the area is called the cardiogenic area. So this area is the cardiogenic area. Initially, this heart tube is present at below of the pericardial cavity. ये खाली स्पेस ऊपर pericardial cavity है, नीचे हमारे पास heart tube पड़ा हुआ है जिसमें कार्डियोजेनिक फील्ड बनी है. ठीक है. यहाँ पे अब ये सब बिफोर फोल्डिंग है. ये हार्ट ट्यूब है, ये पेरिकार्डियल कैविटी है. दिस इज दी सेप्टम ट्रांसवर्सम, जो कि हमारा सेंट्रल टेनर ऑफ द डायफ्राम बनाता है. ठीक है. तो इस डायग्राम में बिफोर फोल्डिंग दिखा है. अब अगर फोल्डिंग के साथ जाएंगे तो ये हार्ट ट्यूब जो है ये हार्ट की एंडोथेलियल ट्यूब बनाएगी, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी बिफोर हेड एंड टेल फोल्डिंग. नाउ द हार्ट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ द एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर एंड. दिस इज द एंटीरियर एंड दिस इज द पोस्टीरियर एंड. अभी इस वक्त आपको ये स्ट्रेट नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही फोल्डिंग स्टार्ट होगी तो अब यहाँ पे आप देखें ये फोल्डिंग स्टार्ट हो रही है, हेड एंड टेल फोल्डिंग. तो हार्ट ट्यूब एंड रिजल्ट इसमें देखें. यहाँ पे ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम था वो इधर पीछे चला गया. ठीक है. यहाँ पे ताकि वो सेंट्रल टेनर ऑफ डायफ्राम बनाने में हेल्प आई. यहाँ पे आप देखो तो ठीक. और ये जो हार्ट है, हार्ट ट्यूब जो ऑक्यूपाई होनी है इस कैविटी में, जो यू शेप बनी हुई है ये वाली, अब ये जो फ्लोर में थी अब ये
रूफ में जाएगी और पेरिकार्डियल कैविटी नीचे आएगी। और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दी हेड एंड टेल फोल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे साथ साथ कार्डियोजेनिक एरिया के साथ साथ यहाँ पे आप देखो ये ब्लड वेसल्स बन रही हैं। आल्सो अनदर एंजियोब्लास्टिक सेल्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स एंड दे विल गिव राइज द डोर्सल एओर्टा, राइट एंड लेफ्ट डोर्सल एओर्टा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसमें इस डायग्राम में आप देखें हेड एंड टेल फोल्डिंग हो चुकी है। हेड एंड टेल फोल्डिंग के रिजल्ट्स में क्या हुआ कि हार्ट ट्यूब goes in the roof of the pericardial cavity and this is the pericardial cavity। पहले है वो हार्ट ट्यूब फ्लोर पे थी, अब रूफ पे चले गए। ठीक है, और सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है वो अपनी जगह पे आ गया, जो कि सेंट्रल टेनन ऑफ डायफ्राम बनाएगा। अब ये हार्ट ट्यूब के जब ये हमारे पास दो फोल्डिंग है, हमारे पास कितनी फोल्डिंग है? दो फोल्डिंग है। ये पीछे वाली हमारे पास हेड एंड टेल फोल्डिंग थी ये, और ये है लेटरल फोल्डिंग। लेटरल फोल्डिंग के रिजल्ट में आप यहाँ पे देखो कि लेटरल फोल्डिंग के रिजल्ट में ये हार्ट ट्यूब ज्वाइन होके राइट एंड लेफ्ट वाली जो है वो एक ही ट्यूब बनेगी। ठीक है, जिससे एंडोथेलियम ऑफ दी हार्ट बनाते हैं। उसके साथ जब उसकी मेसोडर्म आएगी अंदर, ये जो इसके इर्द गिर्द आप देख रहे हो कि ये स्ट्रक्चर जो रेडिश टाइप है या ऑरेंज टाइप ब्राउनिश टाइप, ये मेसोडर्म स्प्लैंक्नोफ्लोरिक मेसोडर्म आएगी। ठीक है, जो कि मायोकार्डियम आगे चल के बनाएगी। अब इनिशियली ये इस फोल्डिंग की वजह से यहाँ पे हमारे पास ये डोर्सल मेसोकार्डियम होती है। ठीक है, लेकिन इसको जब ये डिसअपियर हो जाएगी तो यहाँ पे ट्रांसवर्स साइनस बन जाएगी। ठीक, अब ये एओर्टा भी जो इस तरह यहाँ पे मौजूद है, एंडोकार्डियल ये हमारे पास डोर्सल एओर्टा ये बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हार्ट ट्यूब। अब इस फोल्डिंग की वजह से, लेटरल फोल्डिंग की वजह से ये हार्ट ट्यूब आपस में ज्वाइन होगी दोनों, और इसके पार्ट एंड बन गए। दिस इज़ दी आर्टीरियल एंड, दिस इज़ दी वेनस एंड, और बीच में आर्टीरियल और वेनस एंड में आप देखो तो यहाँ पे दिस वेनस एंड इज नोन एज दी साइनस वेनोसिस, देन प्रिमिटिव एट्रियम, देन प्रिमिटिव वेंट्रिकल, और ये हमारे पास जो है बल्बस कॉर्डस है। ठीक है, तो हार्ट ट्यूब, अब ये इस डायग्राम में भी ये दिखाया है कि जब हेड एंड वो लेटरल फोल्डिंग के बाद ये मेसोकार्डियम है जो कि डिसअपियर हो जाएगा। और देखो हार्ट में वेंट्रल मेसोकार्डियम नहीं है ही नहीं, शुरू से ही नहीं। तो डोर्सल मेसोकार्डियम जब डिसअपियर होगा तो क्या बनेगा? ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। और ये जो मेसोकार्डियम इसके इर्द गिर्द हुई, उसने क्या क्या बनाया, जिसको हमने कहा कि ये मायोकार्डियल मेंटल लेयर बन गई, जिससे हमारे पास जो इनिशियली हमें कार्डियक जेली भी कहते हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? मायोकार्डियम में। और बाहर में ये क्या बनाई? विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इससे ये स्प्लैंक्नोफ्लोरिक मेसोडर्म है, और बाहर से ये हमारे पास है सोमेटोफ्लोरिक मेसोडर्म, और ये पेरिकार्डियल कैविटी है। पैराइटल लेयर डेवलप बाय द सोमेटोफ्लोरिक मेसोडर्म एंड द मायोकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम and myocardium developed from by the स्प्लैंक्नोफ्लोरिक मेसोडर्म। ठीक है, ये भी इसी डायग्राम में भी फोल्डिंग के इफेक्ट्स दिखाएं कि इनिशियली जो हार्ट ट्यूब नीचे थी ये वाली। ठीक, अब ये पेरिकार्डियल कैविटी है। जब हार्ट ट्यूब फोल्ड होके जब इसके अंदर जा रही है तो इसके साथ देखो ये मेसोकार्डियम, ये मेसोडर्म स्प्लैंक्नोफ्लोरिक मेसोडर्म आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आगे एक डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें ये चीज़ होगी। अब दीज आर दी प्रिमिटिव पार्ट्स ऑफ द हार्ट ट्यूब। This is the sinus venosus and two horn of it consists of two horn of the sinus venosus, and this one is the primitive atrium, the primitive ventricle and the bulbous cordus। ठीक, अब आगे आपको क्या आना चाहिए, जो यहाँ पे साइनस वेनोसिस है इसकी यहाँ पे ओपनिंग होगी, यानी कि ओपन हो रहा है किसमें? एट्रियम, साइनो एट्रियल ओपनिंग। ठीक है, अभी एक और सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वो नज़र आती है और उससे फिर क्या डेवलप होता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ द हेड एंड टेल फोल्डिंग की वजह से द एंटीरियर एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब इज आर्टीरियल एंड द वेनस जो है वो, वैसे इनिशियली अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आगे फ्रंट से जाते हैं तो ये वेनस एंड एंटीरियरली होता है, और यहाँ पे आर्टीरियल एंड जो बनेगा वो पोस्टीरियरली होगा। लेकिन उसकी फोल्डिंग की, हेड एंड टेल फोल्डिंग की वजह से एंटीरियर एंड जो है वो हार्ट ट्यूब इसकी पोजीशन चेंज होगी, एंटीरियल एंड आर्टीरियल हो जाएगा और वेनस एंड जो है वो पोस्टीरियर हो जाएगा।
ठीक है, अब ये फर्दर डिवीजन है उस हार्ट ट्यूब की। ये साइनस वेनोसिस है नंबर 6, और ये साइनस वेनोसिस की ओपनिंग होगी जो कि एट्रियम में ओपन हो रही है, प्रीमेटिव एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल है। ये पूरा पिंक वाला बल्बस कॉर्डस है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन दी parts of the bulbous cordis. Number 1 is the truncus arteriosus, number 2 is the conus cordis, and number 3 is the dilated proximal portion. ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज दी ब्लू कलर वाला वेनस साइनस वेनोसिस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हॉर्न, राइट एंड लेफ्ट हॉर्न। ईच हॉर्न रिसीव 3 वेन्स, द कॉमन कार्डिनल वेन, right umbilical vein, and right white line vein. On the left side it also receives the left common cardinal vein, left umbilical vein, and the left white line vein. ठीक, और अब इसके ये जो पार्ट्स हैं ये बहुत अहम हैं। ये जो मैंने बल्बस कॉर्डस के पार्ट्स बताया कि इसके लिए फिर PCQs में भी आता है, ऑस्पी में भी, कि व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द बल्बस कॉर्डस के डिफरेंट पार्ट्स के डेरिवेटिव्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज दी ट्रंकस आर्टेरियोसिस। इट गिव राइज इन द फ्यूचर, इट गिव राइज दी पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा। इनके बीच में सेप्टम बनेगा जो कि स्पाइरल शेप में होगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। ठीक है, और नंबर 2 जो है वो है कॉनस कॉर्डस विच गिव राइज दी आउटफ्लो पार्ट ऑफ द बोथ वेंट्रिकल्स, जो मैंने आपको एडल्ट की डायग्राम में दिखाया था इनिशियली। ठीक है, और दी डायलेटेड ये प्रॉक्सिमल, ये जो डायलेटेड पोर्शन है दिस वन, ठीक है, ये वाला बल्बस कॉर्डस का ये जो प्रॉक्सिमल डायलेटेड पोर्शन है, इट विल गिव राइज दी राइट वेंट्रिकल। कौन सा? ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ दी ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ दी राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इससे बकिया ये पोर्शन है जो इसे बनाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल का पोर्शन। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी। अब फर्दर इसके साथ क्या होता है, ये जो वेनस एंड है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा एक ही राइट साइड ऑफ द एट्रियम में ओपन होता है। तो ये जो लेफ़्ट साइड की जो हॉर्न है और लेफ़्ट साइड की जो वेन्स हैं इनको ख़त्म होना है और ये अपना ब्लड दे देती है राइट साइड में, जिसकी वजह से राइट साइड का जो ये हॉर्न है ये डायलेट होगा क्योंकि इसमें ब्लड लेफ़्ट का भी आ जाएगा। इसको हम कहते हैं लेफ़्ट टू राइट शंट। ठीक है, अच्छा अब आते हैं किसमें, इसको हम डिस्कस करते हैं अगली डायग्राम में कि भाई अगर शंट होगा तो फिर क्या उसमें चेंजेस आएंगी, कौन कौन सी चेंजेस बन जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखो ये वेनस एंड है, ये आर्टीरियल एंड है, लेकिन और ये जो डॉटेड है ये पेरिकार्डियल कैविटी है। पहले हार्ट ट्यूब जो है एस शेप बनेगी, फिर यू ट्यूब यू फॉर्म में बन जाएगी, पहले यू बनेगी, फिर पूरा ऐसे एस बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये दिखाया कि ये जो ए डायग्राम है 22nd डे की है, ये 23rd डे की है, ये 24th डे की है, और यहाँ पे भी ये पूरा ऐसे दिखाया डी में फ्रंटल के भाई कैसे लूप हार्ट लूप जो है वो अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है इस पेरिकार्डियल कैविटी में, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आर्टीरियल एंड है वो सॉरी वेनस एंड है ये हमारा एंटीरियर पे पोस्टीरियर पर चला जाएगा, और जो आर्टीरियल एंड है वो एंटीरियर पे आ जाएगा। इस फोल्डिंग की ऑक्यूपाई की वजह से पेरिकार्डियल में जो ये अपनी फोल्ड करता है हार्ट ट्यूब, इसकी वजह से इसकी वेनस एंड आर्टीरियल एंड में लोकेशन चेंज होगी। ठीक है, डेवलपिंग हार्ट ट्यूब जो कि बल्ज हुई है, दिस वन इज द डेवलपिंग हार्ट ट्यूब गोइंग टू बल्ज इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी, दिस इज द पेरिकार्डियल कैविटी एंड दिस इज द मायोकार्डियल मेंटल लेयर which give rise the visceral layer of the serous pericardium and the myocardium। अब हार्ट ट्यूब जब इसमें इमेजिनेट कर रही है तो अपने गिर्द इसको भी कवर करती हुई जा रही है, अपने लेती हुई जा रही है इस मायोकार्डियल मेंटल लेयर को, मायो एपिकार्डियल मेंटल लेयर को, ताकि इससे मायोकार्डियम भी बना सके और विसरल सीरस लेयर ऑफ द विसरल पेरिकार्डियम की लेयर भी बना सके। ठीक है, अच्छा, और अब इनिशियली यहाँ पे ये वो मेसोकार्डियम है जो कि बाद में डिसअपियर हो जाएगा, जैसे यहाँ डिसअपियर हो गया, और क्या बन जाएगी ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, तो यहाँ यही चीज़ लिखी हुई है, इनिशियली दिया हुआ है द ट्यूब रिमेन अटैच टू द डोर्सल साइड ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी, ये वाली थ्रू द डोर्सल मायोकार्डियम, और इनिशियली शुरू से ही हार्ट के पास वेंट्रल मेसोकार्डियम नहीं होती। ठीक है, और बाद में जब ये डिसअपियर हो जाएगी तो क्या बनेगा ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस,
ये ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस कनेक्ट करता है बोथ साइड्स ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटीज। ठीक है, ये फाइनल पोजीशन है रोटेशन के बाद कि भाई ऑक्यूपाई उसने कैविटी में कर दिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पे आप देखो बल्बस कॉर्डस, दिस वन इज द बल्बस कॉर्डस, इसके पार्ट्स हो गए ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस, कॉनस कॉर्डस, जहाँ पे ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल जो वो बनाता है, जो प्रॉक्सिमल डायरेक्टेड पोर्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा कुछ जो है और यहाँ ये उसके पार्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये बल्बस कॉर्डस से बना। अच्छा, अब जो हमारे पास साइनस वेनोसिस के 2 हॉर्न थे, राइट एंड लेफ्ट हॉर्न, जिसमें मैंने कहा था कॉमन कार्डिनल वेन, अम्बिलिकल वेन, वाइट लाइन वेन, ये वो दिखाएंगे राइट साइड की और ये लेफ्ट साइड की। ठीक है, और वेन देखने के लिए हमें थोड़ा सा हार्ट को रोटेट करना पड़ता है, तो फिर ये हमारी राइट साइड हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। ठीक, क्योंकि वो पोस्टीरियरली लोकेट करता है। अब इससे मैंने कहा था राइट एंड लेफ्ट टू राइट शंट होगा। जब लेफ़्ट टू राइट शंट होगा तो जब यहाँ से ब्लड राइट की तरफ आएगा तो यहाँ पे देखें ये राइट लाइन वाइट लाइन वैन और ये सारा कुछ ये मिलके इन्होंने पोर्शन ऑफ दी यहाँ पे थोड़ा इंफीरियर वेना केवा बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड की हॉर्न था और लेफ़्ट साइड की जो अम्बिलिकल वैन, वाइट लाइन वैन, कॉमन कार्डिनल वैन थी, उन्होंने क्या बनाया यहाँ पे आप नेक्स्ट डायग्राम में देखो, दिस इज़ दी इंफीरियर वेना केवा जो राइट साइड पे बन गया, और जो लेफ़्ट साइड वाले ने अपना ब्लड राइट को दिया, लेकिन रेमिनेंट जो उन्होंने छोड़ा तो क्या बनाया, कोरोनरी साइनस एंड दी ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ़्ट साइड ऑफ दी साइनस वेनोसिस के हॉर्न में जो वेंट्स भी ओपन हो रही थी, उन्होंने ख़त्म होने से पहले ये अपने रेमिनेंट दिए। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बना उससे हॉर्न के स्ट्रक्चर से। अच्छा, अब हम आते हैं कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाई थी यहाँ पे कि साइनस वेनोसिस की ओपनिंग जो है, ये साइनस वेनोसिस है, ये एट्रियम है, ये उसकी ओपनिंग होगी जो कि हमें राइट एट्रियम में नज़र आनी चाहिए। अब इस डायग्राम में आप देखें यहाँ पे ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, अभी सेप्टम पूरा बना नहीं है, सेप्टम बनेगा, इस डायग्राम में बन चुका है। ठीक है, अब ये वो ओपनिंग की वेल नज़र आ रही है साइनस वेनोसिस की, जिसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल ओपनिंग। ये इसका लेफ़्ट वेल्व है, ये इसका राइट वेल्व है। लेफ़्ट वेल्व जो यहाँ पे सेप्टम सेकेंडम बनेगा, सेप्टम प्राइमम भी बनेगा, लेकिन सेप्टम प्राइमम जो है वो फिर डिजेनरेट हो जाता है थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के, तो उसमें हमारे पास जो है ये वाला लेफ़्ट वेल्व जो है फ्यूज़ हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब जो राइट वेल्व है इस साइनो एट्रियल ओपनिंग का, इसका ऊपर वाला हाफ पोर्शन डिजेनरेट हो जाएगा और कोई रेमिनेंट नहीं देगा। जो नीचे वाला इसका लेफ्ट वेल्व ऑफ द साइनो एट्रियल ओपनिंग है, इट विल गिव राइज दी, नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें, वेल्व ऑफ द इंफीरियर वेना केवा एंड वेल्व ऑफ द कोरोनरी साइनस। ठीक है, और ये साइनस वेनोसिस जो है खुद एब्जॉर्ब हो गया किस में, राइट एट्रियम में, एंड इट विल गिव राइज द स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, अभी इतना ही सही है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेप्टम फॉर्मेशन।